آج دوسری نشست ہے، دوسرا روزہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ حاضرین، کل ایک خلاصہ رہ گیا، آج انشاءاللہ اس خلاصے کے تعلق سے چند باتیں ہم گوش گزار کریں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین مجلس، اس بات کو غور و طلب ہے کہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر بھی نمازیں دیا تھا، پہلی امتوں پر بھی دیا گیا تو ہم کو بھی دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت مسلمہ ہے، یہ معتبر کیسے ہوئی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی امتوں پر گواہ بنایا ہے، باقی نبیوں کی نبوت پر یہ امت گواہ دے گی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بروز قیامت تمام امتوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا ہم نے تم میں نبیوں کو نہیں بھیجا، پھر تم کیوں گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے؟ تو وہ امتیں جو سابقہ امتیں گزر چکی وہ کہیں گے اے اللہ ہم میں کوئی نبی نہیں آیا، اگر سے آتا تو ہم لوگ گمراہی کے راستے پر نہ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر امت سے جب کہے گا تو ہر امت اسی بات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے گی کہ اللہ ہم میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، اگر سے آتا تو ہم ہدایت یافتہ قوم ہوتی، ہم گمراہی پر نہ چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ یعنی ہمیں اور آپ کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا اے لوگوں، اے میرے مصطفیٰ، میرے حبیب اور میرے محبوب کی امت، تم بتاؤ کیا ہم نے ان میں کوئی نبی کو نہیں بھیجا؟ تو ہم لوگ ان امتوں کی طرف سے گواہ دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ نبی آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کہا ہے کہ نبی آئے ہیں تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیش علیہ السلام کو بھیجا، زکریا علیہ السلام کو بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، داؤد علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، ہر نبی کو تو نے بھیجا ہے اے اللہ۔ اور وہ نبی امتوں میں بنا کسی وکالت کے پورا دین تجھ سے جو ہدایت ان کو ملتی، جو تجھ سے کلام ملتا وہ امتوں کی طرف پہنچاتے تھے، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں گواہ بنائے گا۔ تو یہ لوگ جو سابقہ امت ہوں گی وہ پوچھیں گی کیا تم نے دیکھا کہ ہم میں نبی آئے ہیں؟ تو امت مسلمہ کہے گی کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ نبی آئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہے کہ قل هو اللہ احد۔ ہم نے تو مکے میں 300 خداؤں کو دیکھا، 3000 بتوں کو دیکھا، پتھر کے خدا، مٹی کے خدا، آٹے کے خدا، لکڑی کے خدا اور الگ الگ قسم کے خداؤں کو ہم نے دیکھا۔ ہم نے ان تمام خداؤں کو دیکھا، لیکن وحدہ لا شریک، معبود حقیقی، زمین و آسمان کا خدا، عرش و کرسی کا خدا، فرش کا خدا، چاند و سورج کا خدا، ستاروں کا خدا، سیاروں کا خدا، جانوں کا خدا، نباتات کا خدا، جمادات کا خدا اور تمام مشرقین مغربین کا خدا، وہ معبود حقیقی جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے لات کو دیکھا، ہم نے عزا کو دیکھا، ہم نے منات کو دیکھا، ہم نے ہر قسم کے خدا کو دیکھا ہے۔ ہم نے ہمارے بنائے خدا کو دیکھا، جس نے ہم کو بنایا اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اے لوگوں دیکھو، ہم نے بنا دیکھے بھی کہا قل هو اللہ احد۔ تو وہ قوم پوچھے گی جو سابقہ قوم تھی نا، وہ پوچھے گی کہ پھر تم نے کیسے مانا کہ اللہ ایک ہے؟ کہا ہم نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر مانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔
हमने रसूल अल्लाह के चेहरे को देखकर माना है कि अल्लाह एक है, और वद्दुहा के चेहरे को देखकर माना है कि मेरे आका ने कहा अना मिराअतुल खालिक, मैं पैदा करने वाले उस रब का आईना हो। हमने मुस्तफा के चेहरे के आईने में खुदा के जलवों को देखा। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अल्लाह ताला ने हमें साबिका उम्मत के लिए गवाह बनाया है। उन नबियों की आने की गवाही बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला हमसे लेगा। कितनी अजीम काम अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। सारे उम्मती जो पिछले जमाने में गुजरे ना, उम्मत पिछले जमाने की जो उम्मत गुजरी, उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीलुल्लाह। और तमाम अंबिया के जितने उम्मती थे उनका गवाह, उनके कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ताला के रसूल ने कहा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ना, तो फिर या रसूलल्लाह क्या पढ़े? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ अल्लाह, तमाम उम्मती पढ़ते रहे नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद। जब उम्मत मोहम्मदिया की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तुम नहीं कोई माबूद नहीं कहोगे, बल्कि तुम ये कहोगे हम गवाह देते हैं, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उम्मत मोहम्मदिया को रसूल अल्लाह ने गवाही बनाई है। अब देखिए, एक साहब ने, मैं एक बारहा मिसाल दे चुका हूं, आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं, बड़ी मुख्तसर बात। रमजान अल मुबारक का चांद दिखा ना, बड़े खुशी हुई यार। मैंने बहुत से लोगों से बात कही है कि 6-7 साल हो गया रमजान हमसे नाराज था, रमजान का चांद नाराज था यार, आज नजर आ गया है। मैं जब गया ना मगरिब पढ़ के ऊपर चांद देखने के लिए, तो मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। ने कहा यार बहुत मुद्दत लगा दी तुमने अपनी जियारत कराते कराते, बड़ी मुद्दत लगा दी। 6-7 साल से तो हम सुनते रहे ये चांद वहां दिखा, सुनकर ऐलान करते रहे। अपनी आंखों से देखकर ऐलान करने का मजा ही कुछ और होता है। सरकार ने फरमाया कि चांद को रमजान के देखना वाजिब है। क्या है? रमजान के चांद को देखना क्या है? वाजिब है। ये हर किसी के लिए नहीं, जो लोग साहिब इख्तियार होते हैं, जो चांद का ऐलान करते हैं, शहर के जो जिम्मेदार, उनके लिए फरमाया गया। तो बहरहाल वो कहने लगे बड़ा मजा मिलता है। चांद का मसला रमजान का आप लोगों को शायद मालूम ही होगा। हम लोग फोन करते हैं, मालूम करते हैं लोगों से कि चांद नजर आया, तो उमूमन ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि हाँ चांद नजर आया है। मैंने कहा आपने देखा है? तो वो बोलेंगे नहीं, हमने भी कहीं सुना है। जब तक हम लोगों को कड़ी नहीं मिलती, जो चश्मदीद गवाह होता है वहां तक ना पहुंचे, तब तक हम लोग चांद का ऐलान नहीं करते। हमने सुना है नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? एक साहब आकर कहने लगे भाई चांद देखा है, चांद नजर आ गया, तो आपने देखा? बोले नहीं देखा। फिर आप कैसे बोल रहे? कहा फलाने ने कहा। थोड़ी देर में और एक इंसान आकर कहने लगा, आप लोगों को मालूम भी होगा शहर जमुड़ुक में रात के 10-11 बजे भी तरावी हुई थी। एक जमाना वो था कि रात के 11-11:30 बजे तरावी पड़ी थी हम लोगों ने, क्योंकि हमको खबर पूरी पक्की नहीं मिली थी। हर कोई आता कि हमने कहा चांद दिख गया, चांद दिख गया। आपने देखा है? बोले नहीं। आपने देखा है? बोले नहीं। आपने देखा है? बोले नहीं। फिर भी हम इंतजार करते रहे। जरा मुझे बताओ, कोई आकर कहे कि चांद दिख गया है और हम कहें आपने देखा है, वो बोला कि नहीं, तो हम फिर भी इंतजार करेंगे। अगर कोई आकर कहा चांद दिख गया है, हमने कहा आपने देखा है, बोले हाँ मैं देख कर आया हूं, और उसके बाद भी हम खामोश रहेंगे या ऐलान करेंगे? बोलिए ना। अब कल चांद मैंने खुद देखा है बाजार, और बड़े साहब बाबा साहब ने भी देखा है, तो हमने किसी का फोन का इंतजार नहीं किया, फौरन ऐलान कर दिया। हालांकि होता यह है कि जब चांद नजर नहीं आता तो हम अतराफ और अकनाफ की खबरें लेते हैं, लेकिन जब चांद हम खुद देखें हमको किसी का इंतजार। बोलिए। तो पिछले नबियों की उम्मत का भी यही हाल है। आदम अलैहिस्सलाम आकर कहने लगे कहो अल्लाह एक है। उम्मत ने कहा आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, सुना है। मूसा नूह अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कहो अल्लाह एक है। उम्मत ने कहा आपने देखा है? कहा सुना है।
जिब्राइल वही लेकर आते हैं ना, तो पता चला कि अल्लाह है। तो हर नबी ने कहा, हर नबी की उम्मत में पूछते रहे कि अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है। हर नबी कहने लगे हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है। जब मेरे नबी आखिरुल ज़मा खातमुन नबिय्यीन मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, खातम का ताज पहनकर, इमामुल अंबिया बनकर, सरदारुल अंबिया बनकर और शाफिए महशर बनकर, हबीबे किबरिया बनकर जब दुनिया में तशरीफ लाए और तमाम नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, तो उम्मत ने पिछली साबिका उम्मत की तरह ये पूछा कि क्या आप नबी चांद को सुनकर कर रहे हैं? आपने नबी आप अपने आप को खुदा का ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि आपके पिछले नबियों की तरह खुदा को सुन के बता रहे हैं या देख कर आए हैं? तो मेरे नबी मुस्कुराकर कहते हैं नहीं नहीं, अना मेरा अकुल खालिक और मैं मालिक का आईना हूँ। कहा मन रानी वराउल हक, जिसने मुझे देखा है उसने खुदा को देखा। मैं वो नबी नहीं कि जो सुनकर आकर ऐलान करे, मैं वो नबी हूँ जो देखकर आया है। कहा कैसे देखा है? सुम्मा दना फक़दल्लाह फकान का कौसैनी अव अदना, मैंने मेराज की रात खुदा के खूबसूरत जमाल को देखा है, खुदा की जियारत की है। वो कैसे जियारत की है, वो कितना प्यारा हसीन है या रसूल अल्लाह। अब जब रसूल अल्लाह ने अल्लाह को देखा और देखकर हमें आकर कहा ऐ लोगों, अब सुनने का मसला नहीं, अब देखकर आया हूं, जजमेंट का मसला है। कहा अब तुम पिछली उम्मतों की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना, बल्कि कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह ये है। समझ रहे ना? तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे मेरे भाई। ये जो लोग होते हैं ना पिछले जमाने वाले, इन लोगों ने रोजे रखे थे, लेकिन उनमें रोजों का मसला अलग था। किसी को 40 रोजे थे, किसी को 50 रोजे थे। लेकिन हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने 30 रोजे अता फरमाए हैं। ये रोजों की बड़ी फजीलतें हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आगे इंशाअल्लाह आपके सामने इसी के फजाइल के ताल्लुक से बात बयान करेंगे। अब चंद सवालात हैं तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बताऊंगा ताकि उसके जवाब भी हो जाए। मुख्तसर मैं जल्दी जल्दी सवालात पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी जवाब दूंगा, क्योंकि टाइम का भी लिहाज रखना है। अब ज्यादा टाइम लिए तो लोग आए वो साहब ज्यादा टाइम ले लेंगे। किसी ने पूछा है कि क्या प्रेग्नेंट औरत रोजा रखना जरूरी है? घर वालों से इनकार है, ना रखेंगे तो क्या होगा? देखिए याद रखें, प्रेग्नेंट लेडीज जो होते हैं, जो हामिला औरतें हैं, वो भी रोजा रखना जरूरी होता है, बशर्त के जब तक के बच्चे को और उसको जान का खतरा लाहक ना हो। एक अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें, 2-3 डॉक्टरों से पूछें। अगर से डॉक्टरों को कहेंगे भाई उससे कोई मसला नहीं होगा तो आप रोजा रखें। रोजा रखना फर्ज आइन है, इस्लाम के फराइज में से फर्ज है, तो रोजा कंपल्सरी रखें। और रोजे के लिए कोई दुश्वारी नहीं है। सुबह में सहरी करते हैं, शाम में सहरी करते हैं, इफ्तियार करते हैं, तो दोपहर का एक खाना निकल जाता है, तो कोई मसला नहीं। रखे, अल्लाह पे भरोसा रखकर, तवक्कल रखकर रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप रोजा रखेंगे तो उसके असरात आपके बच्चों के लिए भी अच्छे साबित होंगे। जब औरतें हामिला होती हैं तो उनको कुरान पढ़ना चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार तमाम गालियों से, सिल्मा ड्रामों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे बुरे असरात होते हैं, अच्छे असरात डालना चाहिए। वो कौन सा मुक़द्दस जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? खैर इसका जवाब फिर आगे देंगे। औरत हामिला होने पर सूरह मरियम और सूरह यूसुफ किस वजह से पढ़ी जाती है? देखिए ये उम्मन बुजुर्गान दिन का कहना होता है कि जो औरतें हामिला होती हैं उनको सूरह मरियम इसलिए पढ़ी जाती है ताकि जब डिलीवरी का वक्त आए तो उनको आसानी हो, और फिर सूरह यूसुफ इसलिए पढ़ी जाती है ताकि बच्चा खूबसूरत और हसीन पैदा हो। और जब सूरह यूसुफ पढ़कर अल्लाह के लिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मेरे औलाद को खूबसूरत और खूब सीरत भी अता फरमा। सहरी और इफ्तियार के एक ही शहर में बहुत से टाइमिंग्स रहते हैं, हमें किस पर चलना चाहिए? ये सवाल इन्होंने किया है कि एक ही शहर में बहुत से लोग कार्ड छपवाते हैं जिनका टाइमिंग फर्क रहता है, तो हम लोग किस पर चलें? देखिए टाइमिंग का जो मसला होता है ना रमजान के इफ्तियार का, ये साहिब तजुर्बा से ले। तजुर्बेकार लोग जो होते हैं ना पुराने,
इसके लिए इल्मी महारत, अबजद का इल्म होना जरूरी होता है। बहुत से लोग जंतरियां देखकर डाल देते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि जो कदीम पहले से जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, आलिम दीन हैं या साहिब इख्तियार हैं, तो उनको देखकर लें। बाकी अगर से जो इलाके वाले हैं वो इलाके वालों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर से उस टाइमिंग में कुछ फर्क आ जाए तो वो लोग सारे, वो अगर से रोजा वगैरह तो गया, सहरी का मामला उतना कुछ नहीं होता, 4-5 मिनट का फर्क रहता है, उसमें कोई मसला नहीं रहता हमारे को। लेकिन इफ्तियार का जो मामला है बहुत नाजुक मामला रहता है, उसमें 2-3 मिनट आगे हो जाए तो रोजा टूट जाएगा। तो ये सारा वबाल जो साहिब जो तरतीब होते हैं, जो कार्ड वगैरह लिखते हैं, उनके सर पे आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अच्छी तरह उसकी शनाख्त कर लें, पहले टाइमिंग चेक कर लें कि वाकई ये टाइमिंग है नहीं, ये साहिब इख्तियार है नहीं, बहुत पुराने आदमी होते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे शहर जमला मुल्क में बाबा साहब सालाना साल पूरा ये डालते हैं। अगर से आप जंतरी में देख लें बाबा साहब की जो टाइमिंग होती है वो बड़ा दूर दराज की। बाबा साहब का एक आदत करीमा यह है कि वो सिर्फ जमला मुल्क का ख्याल नहीं करते, 60 किलोमीटर की सराउंडिंग का ख्याल करके कार्ड डालते। वो कार्ड ले जाकर आप 60 किलोमीटर दूर भी जाएंगे ना, कहीं भी सराउंडिंग में वो कार्ड चलेगा आपको। और फिका का एक ज़ाब्ता यह है, मुफ्ती वही होता है जो जमाने पर नजर रखकर फतवा दे, किताबों के बेस पर नहीं। किताबों का तो मुताला वो करेगा ही, लेकिन जमाने के माहौल को देखकर जो फतवा देता है वो साहिब मुफ्ती होता है। तो इसी तरह जो इस तरह जमाने के लोगों की जरूरियात, अख्ताफ और अकनाफ के लोगों का ख्याल रखकर जो इंसान काम करता है उसको फॉलो होना लाजिम है। तो शहर जमलौड़ में बाबा साहब का टाइमिंग परफेक्ट है, तो उसे फॉलो हो सकते हैं आप। रोजे की हालत में फिल्म वगैरह देखना कैसा है, क्या इससे रोजा टूटता है? रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन मुनासिब नहीं है। अगर से कोई ड्रामे फिल्म ऐसा देखें जिसमें शरई उज़र कुछ भी ऐसी मसला नहीं है, जिसमें बेहयाई आम हो, औरतों के कोई ऐसे लिबास वगैरह हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मामूल सी छोटा मोटा ड्रामा है हंसी मजाक का, तो देख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें उसकी आदत ना बनाए। कभी एक बार जैसा मतलब टाइम नहीं निकल रहा है, रोजे की शिद्दत महसूस हो रही है, तो थोड़ा टाइम पास के लिए देख लें तो कोई मसला नहीं, उसकी आदत ना बनाए। बल्कि चाहिए रोजेदार को ज्यादा के ज्यादा कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़े, जिक्र अस्कार करे और कुरान की तिलावत करे। लेकिन कभी एक बार देख लें तो कोई मसला नहीं है, देख सकते हैं। आपसे हमने सुना था कि रोजे की हालत में गाली और झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्या इनके बोलने से रोजा टूटता है क्या? देखिए, गाली और झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, इससे रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन अलबत्ता के रोजे की नूरानियत में कमी आ जाती है। रोजे की नूरानियत में कमी आ जाती है, रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं बोलना चाहिए इन तमाम चीजों से। रोजे का मतलब ही वो है, मैं लास्ट कल ही बताया था गालिबन आपको, रोजे का मतलब ये नहीं है कि आप खाना खाए बगैर रहो। रोजे का मतलब ये है कि आप जबान, आंख और कान और हाथ, इन तमाम चीजों को गुनाहों से बचाए, ये भी रोजा होता है। रोजे की हकीकी बात यह है। सुन्नत मौकिदा और गैर मौकिदा में फर्क क्या है? खैर ये और ये दूसरे मसला इंशाल्लाह कल आपके सामने बताएंगे, क्योंकि इसकी जरा थोड़ी तफसील जरूरी होती है, क्योंकि वक्त का लिहाज है। मुझे हार्ट स्ट्रोक हुआ है, स्टंट डले हैं, क्या मैं रोजा रख सकता हूं? ना रख सका तो इसका क्या सिला होगा? देखिए, हार्ट स्ट्रोक हुआ है और आप स्टेंट डले हुए हैं, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे राब्ता करें, उनसे मशविरा लें। और डॉक्टर साहब कहा कि भाई अभी स्टेंट आपका नया नया डला है, आप अभी रोजा नहीं रख सकते, आप चंद दिनों के बाद रख सकते हैं, तो आप वो रोजों की खजा उसके बाद कर लेंगे। फिदिया कभी भी याद रखें, जिंदगी में कभी आपको रोजा रखने का मसला ही पेश ना आए, आप रोजा रख ही नहीं सकेंगे, आपकी बीमारी इतनी शदीद है, तब आपके लिए फिदिया लाजिम होगा। वरना आपको मतलब ये रमजान आप रोजा नहीं रख सकते, सपोज ये रमजान में हम बीमार हो गए, इतनी शदीद बीमारी है कि रोजा नहीं रख सकते, जब आप शिफायाब होंगे, यानी अगले साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, जब भी आपको शिफा मिलेगी, डॉक्टर ने कहा कि भाई आप 2-3 साल के बाद आपको शिफा मिलेगी, आप सेहतयाब होंगे, तो उसके बाद आपको उसका खजा अदा करनी जरूरी है। खजा जिस तरह नमाज छूटने पर खजा करेंगे। रोजा ना रखने वालों का क्या अजाब होगा? इसकी बहुत खतरनाक वईद आई है,
حدیثوں میں. روزہ کا خلاصہ یہ ہے جو انسان جان بوجھ کر دنیا میں بلا عذر روزے چھوڑتے ہیں اللہ قیامت میں اپنی خاص رحمت سے اسے محروم فرما دے گا. اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس کے طرف. اور عذابات تو بے شمار آئے ہیں. یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے طریقوں میں 3 بیٹھنے کے طریقے ہوتے ہیں عموماً. ایک کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے, ایک 4 پاؤں پر بیٹھ کر پڑھیں گے, دوسرا آ کر جوزدان بیٹھ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ اور 4 پائی بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ عموماً ایک ہی ہوتا ہے. جب آپ 4 پائی پڑھ کر مطلب الکت پلکت مار کر جب نماز پڑھیں گے اور کرسی پر پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ اکبر رکعت پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, سورہ ثنا وغیرہ پڑھیں گے, رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکیں گے اور سبحان رب العظیم کی تسبیح پڑھیں گے اور تصور رکھیں گے کہ میں نے رکوع کیا. پھر اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پھر اس کے بعد اور تھوڑا جھکیں گے, رکوع سے سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گے, لیکن ہاتھوں کو اس طرح رکھنا یا زمین پر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. صرف گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا زیادہ جھکیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں گے, جو لوگ الکت پلکت اور نماز کرسی میں پڑھتے ہیں. پہلی شرط. اور تیسری یہ ہے جب آپ اگر سے جزدان پڑھتے ہیں تو اس میں تو امکان ہے کہ آپ لوگ سجدہ کر سکتے ہیں. جو حضرات سجدہ کرنے کے اہل ہیں وہ آرام سے سجدہ کر کر نماز پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ اگر سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں آپ زیادہ دیر نماز میں کھڑے نہیں سکتے, آپ کو کچھ پرابلم ہے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ ٹیک لگا کر کھڑے, مطلب دیوار کو ٹیک لگائیں یا کوئی لکڑی وغیرہ ہے اسے پکڑ کر کھڑے رہیں, یہ شریعت نے کہا ہے. اس کے بعد بھی اس پر بھی آپ طاقت نہیں ہے آپ کی, آپ پھیر نہیں سکتے, تو وہ حالت مجبوری ہے, تب آپ کرسی پر بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی الکت پلکت سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جوزدان پڑھیں تاکہ سجدہ تو ادا ہو آپ کا. جی سمجھ میں آیا نا. اب بعض لوگ نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے, گھٹنوں کا درد رہتا ہے, جو لوگ کرسی کو عموماً بیٹھتے ہیں یا نیچے بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ کرسی پر ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں, تو ان کے لیے قیام اور سجدہ دونوں معاف ہے, کیونکہ سجدہ اور قیام فرائض میں سے ہیں. جب قیام ساقط ہو جاتا ہے تو سجدہ بھی نکل جاتا ہے سمجھ شریف میں. تو آپ لوگ اسی طرح پڑھیں, لیکن یاد رکھیں اپنا وہ ڈیسیشن نہ لیں اس معاملے میں. آپ فرض نماز اور واجب نماز یہ 2 نماز ہیں. بعض فقہا کے نزدیک سنت موقدہ بھی, یہ 3 نمازوں کے اندر قیام فرض ہے. باقی آپ سنت غیر موقدہ ہو, نوافل ہو, بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ 3 نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض عین ہے. تو اس کو آپ خیال میں رکھیں. آپ کون سے ڈیسیجن نہیں, جرہ گڑگے میں درد ہے, جرہ یہاں پکڑ لیا تو بیٹھ کر پڑھ لیا, آپ سمجھ نہیں چلتا. آپ صاحب علم سے, مسجد کے امام سے یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ حضرت میری یہ تکلیف ہے, کیا میرے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ تو امام صاحب کہیں کہ آپ کا یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر پڑھیں, تو آپ کی نماز ہوگی. آپ وہ ڈیسیشن نہیں لے سکتے اس معاملے میں. اگر سے آپ خود یہ ڈیسیشن لیں گے, آپ کا عذر شرعی نہیں کہلاتا اور آپ اس کے باوجود بھی ذریعہ تکلیف کو برداشت کرے اگر آپ نماز پڑھ لیے تو فرض ساقط ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی, سیریس نماز ہی نہیں ہوتی. اس کے واسطے یہ مسئلے آپ بہت باریک مسئلے ہیں, صاحب علم سے پوچھ کر عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں سمجھنے کی, دین و ملت اسلامیہ پر چلنے کی. جو بھی سوالات وغیرہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ چیٹی وغیرہ لکھ کر آپ سوالات اپنے بتا سکتے ہیں. ہر دن بیان میں اسی طرح کے جوابات آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاتحہ. قال الله تعالى في شأن المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد المعدن الجد والمنبر والحكمة والكرم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.